Assalamu alaikum warahmatullah. Myself Amir sir. I'm going to teach you the first chapter of class 10 mathematics, that is real numbers. Dear students, we explore the real numbers in two categories. Number first category is rational number and the number second category is irrational number. In this chapter, that is real numbers, we shall continue our discussion on real numbers. We shall begin with two important properties, two important two important properties of real numbers. Number first property is Euclid's division algorithm. Number first property is Euclid's division algorithm, and the number second property is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. These are the two important properties which we are going to discuss here. Number first property, dear students, is Euclid's division algorithm. And this Euclid's, before starting Euclid's division algorithm, we have to explain Euclid's division lemma. What actually Euclid's division lemma or Euclid's division algorithm states? This Euclid's division lemma is actually connected with the divisibility of integers. Number first, this one, it's connected with the divisibility of integers, and this lemma states that Euclid's division lemma, this states that any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves the remainder r, and that remainder r will be less than b. My dear students, you have to remember the statement of Euclid's division lemma. I will explain once again. Euclid's division lemma states that if we have any positive integer a, this any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves the remainder this r, and the remainder r will be less than b. And this is nothing. This Euclid's division lemma is nothing but a long division process. What's actually this? A long division process. In fact, the lemma gives us the stepwise procedure to find out the HCF of two given positive integers. This is very important. ये भी यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ये जो यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम या लेमा जो है, ये हमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप वाइज प्रोसीजर देता है. किसके लिए? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द HCF of two given positive integers. Two given positive integers. ये आप याद रखेंगे. And this stepwise procedure is known as Euclid's algorithm. जब भी हम दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालेंगे, हमने यहां से कहा कि ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे? टू स्टेप वाइज प्रोसीजर. ये जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर इज एक्चुअली नोन एज यूक्लिड्स एल्गोरिथम. एंड द नंबर सेकंड प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में. हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे ही एक बेटा काम. इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लेमा पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है बेटा? तो मैं यहाँ पे ये रब करता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन
यहां पे हम पढ़ेंगे बेटा यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जो हथियार हम इसमें यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द एससी ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये क्या कह रहा है, ये इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा, यहाँ पे आप वो ध्यान रखेंगे। गिवन, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा गिवन टू इंटीजर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बताया हमारे पास दो इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं दूसरे एक पॉजिटिव इंटीजर से इन सच अ वे सो दैट इट लीव्स द रिमाइंडर आर, ठीक है। और वो रिमाइंडर आर जो है वो क्या होता है, लेस देन बी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट करता है बेटा गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर गिवन हमारे पास होता है, दैट इज ए एंड कौन कौन सा, a and b, given two positive integers a and b, there exists, क्या exist होता है, there exists whole numbers, कौन कौन सा whole number, q and r। ये बेटा इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे, q and r, such that क्या होगा, जब हमारे पास दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो वहां पे एग्जिस्ट होंगे और दो होल नंबर्स, कौन कौन सा होल नंबर, क्यू एंड आर। जब ये एग्जिस्ट होंगे फिर क्या होगा, देन ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर वेर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, वेर जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। यहां पे बेटा आपको ये याद रखना है, ये वाला जो यहां पे मैं इस वक्त यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, ये वाला, ये जो है बेटा यहां पे जो बॉक्स में यहां पे ये वाला, ये जो यहां पे मैंने इस वाले बॉक्स में जो मैं रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, किसी भी हालत में इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जिसको हम यूज करेंगे आगे, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, हमारे पास दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन देयर विल एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट जो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मगर वहां पे इसके लिए एक क्या है, वहां पे इसके लिए एक सेटिस्फेक्शन है, वो है दैट इज जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो बेटा इन वर्ड्स में अगर हम कहेंगे, ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, अगर मैं इसको मैं वर्ड्स में लिखूं, मैं यहां पे आपको बता देता हूं इन वर्ड्स, मैं वर्ड्स में इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो a है, a इज डिविडेंड, it is dividend equals to, what is b, it is divisor, क्या है बेटा, it is divisor, ठीक है बेटा, divisor। what is q, q is quotient, क्या है q, quotient, quotient। और प्लस क्या है, what is this r, r is रिमाइंडर, जो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पहले, अगर आप छोटे बच्चे भी जब आप थे तब भी आपने ये जरूर किया होगा, ठीक है, REMAINDER रिमाइंडर। तो इसका मतलब है इन वर्ड्स में जो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, इसको मैं इन वर्ड्स ऐसे लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे नोट एक यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है बेटा, नोट, इसमें आप मैं थोड़ी सी एक दो डेफिनेशंस आपको बताता हूं, जो डेफिनेशंस आप याद रखेंगे। पहला हमारे पास है बेटा जो अभी हमने बोला एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम,
GORITHM, ठीक है बेटा। व्हाट इज एल्गोरिदम? ये एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज नथिंग, इट्स एक्चुअली अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमें एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय सोल्यूशन निकालना इज एक्चुअली ए एल्गोरिदम। हम ये कह सकते हैं एन एल्गोरिदम इज a well defined, क्या है ये, is a well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। कोई भी प्रॉब्लम, ये आप याद रखेंगे। यहां पे देखो बेटा, एल्गोरिदम का मतलब है, एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हमें क्या देते हैं, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी तरह से बेटा हमने दूसरी डेफिनेशन यूज की थी, लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा और दूसरा मैं लिखूंगा बेटा क्या, लेमा, LEMMA, लेमा। अब लेमा क्या होता है? देखो बेटा, लेमा एक प्रोन स्टेटमेंट होता है। ये एक ऐसा हथियार है जिस हथियार को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ होता है उसके लिए हम ये लेमा यूज करते हैं, और लेमा की वजह से हम उसको प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे लेमा की डिफिनेशन लिखता हूं बेटा, ये भी आप लिख के रखेंगे। लेमा इज एक्चुअली अ प्रोन स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूं a prone statement used for proving another statement, ठीक है। लेमा एक प्रोन स्टेटमेंट होता है बेटा, जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर आपको? चलिए बेटा आगे। अब मैं आपको और एक चीज यहां पे दिखाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बता दिया कि जो हमारे पास ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, हमने कहा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे मैं आपको अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स बताता हूं जो आप याद रखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है बेटा। इसको आपको याद रखना है। आप देखिए ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में बेटा हमने अभी कहा कि हमें यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, से फॉर एग्जांपल a एंड b विद a ग्रेटर देन 0। हम ये कह सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? से हम यहाँ पे करें फॉर एग्जांपल कहेंगे से a एंड दूसरा कौन सा है, से a एंड b विद, क्या कहेंगे, विद a ग्रेटर देन b। याद रखिएगा बेटा, ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें a जो है वो ग्रेटर देन लेना है b। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कहीं आप ऐसा ना करो कि आपने b ग्रेटर देन a लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसमें a ग्रेटर देन b लेना है, क्योंकि b जो है वो रिमाइंडर से ऑलरेडी क्या होता है, बट r इज लेस देन b। ये याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। a आपको पहले लिखना है बिकॉज a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इस एचसीएफ को निकालने के लिए जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं एचसीएफ, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स आपको बेटा याद रखने हैं। सम स्टेप्स जो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर
द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, ठीक है। पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। किस किस पे आप यहाँ पे करेंगे अप्लाई, कौन सा लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किस पे, टू ए, ये ए और बी क्या है हमारे पास, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास है 620 920, ये भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनमें आपको देखना है जो बड़ा होगा दैट विल बी ए, और जो इससे छोटा होगा वो क्या होगा, बी। ए बी से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। पहला स्टेप है आपका, इन ऑर्डर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, अप्लाई करो डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस किस पे, दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स पे, ए एंड बी पे। हम लोग वहां पे क्या करेंगे, वहां पे क्या होंगे, वी फाइंड होल नंबर्स। कौन कौन सा होल नंबर, अभी मैंने प्रीवियस में बताया, वी फाइंड होल नंबर्स कौन कौन सा, क्यू एंड आर, ठीक है, क्यू एंड आर, सच दैट क्या होगा फिर, ये इक्वेशन एक सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है बेटा। वेर क्या होगा वहां पे, वाई जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर के जो वैल्यूज है दैट शुड बी फ्रॉम जीरो टू बी, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, जब आपने इतना किया उसके बाद आपके पास दूसरे स्टेप में दो प्रोसेसेस है। जब आपने पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आपने यूज किया ए और बी पे, उसके बाद ये वाला स्टेप, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बेटा यहाँ पे जो ये आर है आपका रिमाइंडर, ये वाला आर, ये जो मैंने सर्कल में बना दिया, अगर बेटा यहाँ पे आपका आर व्हेन, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपका रिमाइंडर आर जीरो निकलेगा, एक केस वो है। दूसरा केस ये है कि या तो आपका रिमाइंडर आर जीरो नहीं निकलेगा। पहला केस मैं बताता हूं, जब आपका रिमाइंडर आर जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर रिमाइंडर आर पहले ही स्टेप में जीरो के बराबर निकला देन, तो क्या होगा देन, यहां पे देखो बेटा, देन जो आपका बी होगा, तब ये वाला बी इधर, ये जो बी आपको इस स्टेप में आएगा, देन बी इज द HCF of the given two positive integers a and b। ये याद रखिएगा। पहला स्टेप ये है कि जब अगर आपने जब लेमा यूज किया, उसके बाद दूसरे स्टेप में अगर आपका और जीरो निकलता है, रिमाइंडर जीरो निकलता है, तो बी जो आपके पास है डिवाइजर, ये क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब दूसरा केस जो है बेटा यहाँ पे इसका, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये केस पहले हो सकता है, तो बी रिमाइंडर, आपका बी रिमाइंडर एचसीएफ होगा ए और बी का। दूसरा केस ये है कि आपका रिमाइंडर जो है ये जीरो के बराबर नहीं निकलेगा, तब क्या करोगे आप, तब आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू ए। देखो किस किस पे फिर करना है अप्लाई, देन वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपका जीरो आर रिमाइंडर जीरो नहीं निकलता है, उसके बाद बेटा आप यहां पे डिवीजन लेमा किस किस पे अप्लाई करेंगे, ये यहां पे, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये बी और आर। दूसरे स्टेप में आप किस चीज पे फिर अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, बी और आर पे। यहां पे ये आर है बेटा, ठीक है, बी और आर पे, जब आपका आर जीरो के बराबर नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलिए फिर तीसरा स्टेप, ठीक है बेटा। तीसरे स्टेप में आप करेंगे कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है बेटा। कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस तब तक, टिल द रिमाइंडर
जब अब तक आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता है, टिल द रिमाइंडर इज जीरो, तो आपको कंटिन्यू करनी है। आपको स्टेप, इसका मतलब क्या होता है, आप कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो का मतलब है हम स्टेप सेकंड, ये जो स्टेप है हमारे पास, ये वाला स्टेप हम ये कंटिन्यू करेंगे, हम बी और आर पे तब तक कंटिन्यू करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे अप्लाई डिवीजन लेमा, जब तक हमारा रिमाइंडर आर जो है वो जीरो के बराबर नहीं निकलता है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं निकलेगा तब तक हमें डिवीजन अप्लाई करना है, तब तक ये स्टेप सेकंड जो है हमें ये कंटिन्यूअसली जो है ये रिपीट करना है जब तक हमारा रिमाइंडर आर जीरो निकलेगा। जो ही हमारा स्टेप सेकंड को रिपीट करने के बाद जब एट द एंड हमें रिमाइंडर आर जीरो निकलेगा बेटा, तब वहां पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लास्ट थर्ड स्टेप में जो ही रिमाइंडर आर आपका जीरो निकलता है, देन आप यहां पे याद रखेंगे, देन उस वाले स्टेप में द डिवाइजर, divisor, then the divisor at this stage, then the divisor at this stage will be the required HCF। क्या होगा वो, किस वाले स्टेप में, जब आपने लास्ट सेकंड स्टेप जब आप कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे टिल योर रिमाइंडर इज जीरो, जब लास्ट वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर जीरो निकलता है, तब बेटा जो आपका क्या है, जो तब आपका डिवाइजर उस वाले स्टेज में होगा, उस वाले स्टेप में होगा, वो आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप जो है ये मैं आपको एक ग्रिड में बना के देता हूं सो दैट ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है बेटा, होप आपको यहां तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी आप इसको रिपीट करेंगे, आप जहां पे भी अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपने लिख सकते हो। तो चलिए बेटा आगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहां पे आपके लिए ग्रिड बनाता हूं। ठीक है, जो ग्रिड इंपॉर्टेंट है जिस पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे हमें करना क्या है। देखो पहला स्टेप था हमारा ये, अच्छे से देखना, अप्लाई डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, टू नंबर्स, किस किस नंबर पे, टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, ये दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है विद, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज रखनी, विद ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए विद ए, जब हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा हम पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो जो ही आप अप्लाई करेंगे और बी पे डिवीजन लेमा हम क्या हासिल करेंगे, वी गेट, क्या करेंगे यहां पे हासिल, एक इक्वेशन, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और वहां पे सेट से और दूसरी चीज भी है, दैट इज जीरो वेयर जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे बॉक्स में रखता हूं। ठीक है बेटा, इसको मैं बॉक्स में रखता हूं। ये पहला स्टेप है। जो ही आपने ये पहला स्टेप खत्म किया है उसके बाद जो अभी मैंने आपको बता दिया है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपका आर जो है ये क्या होगा, इफ अगर आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर आया, अगर फॉर एग्जांपल आपका रिमाइंडर किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया, अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर आया बेटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं यस। फॉर एग्जाम्पल अगर आर जीरो के बराबर निकला यहां से यस, अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर निकला तब क्या होगा बेटा, इधर देखिए, तब हमारा बी जो है उस वाले स्टेज में, बी इज HCF। ये इंपॉर्टेंट स्टेप अब याद रखेंगे, बी इज HCF, किसका HCF, ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास गिवन है, दैट इज ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इस ग्रिड से आपको ये अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप डिवीजन एल्गोरिथम में जब आपने यूज किया है बी, ए और बी पे विद ए ग्रेटर देन बी, तो वहां पे आपको क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की इक्वेशन आपको मिलेगी, दैट जीरो लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो दूसरे स्टेप में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, इधर आपका रिमाइंडर आर जीरो निकलेगा, अगर रिमाइंडर आर जीरो निकला लेस यस जो मैंने अभी बोला, तब आपका बी उस वाले स्टेप में क्या होगा, बी विल बी द रिक्वायर्ड HCF ऑफ ए एंड बी। अगर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा आपका रिमाइंडर आर जो है वो जीरो के बराबर नहीं निकला, नो। ठीक है बेटा, नो मैंने इसलिए लिखा। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे,
आप यहां पे करेंगे एक चीज, आप लिखेंगे यहां पे कंटिन्यू द प्रोसेस। कंटिन्यू किस वाले स्टेप से आप कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू विद स्टेप फर्स्ट, कंटिन्यू विद स्टेप सेकंड, टेकिंग बेस एज आर, टेकिंग बेस आर एज बी। ये इंपॉर्टेंट है। जो ही आप पहला स्टेप इसमें रिपीट करेंगे, इसमें आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये जो बेस आपको लेनी है, आप बेस आर लेंगे एज बी। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये इसके साथ कनेक्ट होगा। ये बन गया आपके पास ग्रिड, जो ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ग्रिड को आप आराम से याद रख सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। और ये वो स्टेप्स है जिन स्टेप्स की वजह से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।